Rakesh Jhunjhunwala itself said कि trading is one of the hardest way to earn easy money and is the easiest way to lose your money, hard earned money. कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे. मतलब प्रॉफिट्स तो सोचना ही नहीं है. थिंक अबाउट लॉसेज. द डे यू थिंक अबाउट लॉसेज यू विल बी प्रॉफिटेबल. आपको रियल ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग खुद का पैसा लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको गलतियाँ समझ आएगी. प्रॉफिट्स तो हमेशा कभी बन जाएंगे. स्टिक टू प्रोसेस. रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की. जस्ट बी लाइक अ ड्राइवर. डोंट लूज योर विकेट्स. आपका कैपिटल मत खो. अगर आपका कैपिटल खो दिया आपने तो आप वापस एंटर ही नहीं कर पाओगे. इट्स बेटर टू जस्ट प्ले क्वालिटी शॉट. Hi Ashish, welcome to Shark Trade Stories. Ashish, can you introduce yourself to our viewers? So first of all, thank you for having me here. And of course, if you see my journey, actually, I started my career from HDFC Bank. So in education, like I did MBA in finance. So I started my career from HDFC Bank, and HDFC Bank में I keep on meeting regular like HNIs clients. So financial market में शुरू से interest है और that's why I opted for finance in MBA. So financial market में तो HDFC Bank में experience हुआ तो I used to meet new clients. तो उनसे मुझे और interest generate हुआ. So I switched to then AMC sector, mutual funds. I joined Nippon AMCs. So again mutual fund, again I generated new interest in mutual funds. So financial market में शुरू से interest है. And overall if you see I have around 12 to 13 years of experience in financial markets while doing trading as well as job. So again there are a lot of mistakes I did in my journey, especially in trading. So overall you can say I have like around 15 years of experience overall in financial markets. And I find very fascinating in new markets like today in crypto. So that's why I use your platform Shark Exchange. So I really find very beautiful platform because it's very seamless. So around from last few months, 5 to 6 months, I am using it, and crypto is again a new opportunity, I think. So just a short journey that what my interest is and what is about. Like still I am doing job in fintech company. So now I am exploring new fintech platforms and I am doing job in fintech. So it's like my passion is in financial markets. That's nice. Good to hear that, Ashish. तो आशीष, आपका ट्रेडिंग जर्नी कब स्टार्ट हुआ? Trading journey, if you say, I started while I started entered into my job, first job. So first job in HDFC Bank. So I started trading at that time only. अच्छा, आपने Yeah, तब से ही while start while doing job. Nice. So because started तो actually I started मेरा friend trading करता था. So उसने ऐसे ही एक बार कहा कि तू अकाउंट खुला दे, विल सी कैसा प्रॉफिट होता है. आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड आई डिडंट डू एनीथिंग, राइट. माई फ्रेंड ओनली डज ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी. अच्छा. सेकेंड डे उसने कहा कि 1,000 रुपये क्रेडिटेड प्रॉफिट. मैंने कहा 1 मिनट मतलब ट्रेड लिया अभी है 10 मिनट्स पहले, 10 मिनट्स में 1,000 रुपीज़. मैंने कहा इट्स गुड. तो वैसे स्टार्ट हुआ एक्चुअली. अच्छा. सो या सो आई डिडंट हैव एनी नॉलेज एट दैट टाइम रिलेटेड टू ट्रेडिंग, बट आई नो दैट व्हाट इज ट्रेडिंग एंड हाउ वी डील इन फिनेंशियल मार्केट्स. तो मुझे पता था एंड ऑल इज़ लीगल. सो ऑफकोर्स मैं शुरू से इलीगल या कोई भी डब्बा ट्रेडिंग या जो भी ऐसे होता है बहुत लोग करते थे मेरे आसपास, बट आई नेवर वेंट इनटू दैट. अच्छा. सो कि मुझे करना है तो लीगल करना है, अदरवाइज नहीं करना. सो he used to do like external trading करते थे जो just नाम पे ट्रेडिंग करते थे. तो वो मैं फ्रेंड करता था, बट एंजल वन की फ्रेंचाइजी भी थी. तो आई ओपन द अकाउंट इन एंजल वन. अच्छा. तो उन्होंने प्रॉफिट बनाया था, वहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया. राइट. एंड कैसे आपने
मतलब कैसे स्टार्ट किया आपने अकाउंट बना दिया एंड Yeah. स्टडी मटेरियल सो आपका अब कैसे? अब बात है क्योंकि मैं शुरू से डिपेंड नहीं रहना चाहता था कि मैं मेरा फ्रेंड कर रहा है, आज प्रॉफिट होगा लॉस भी होगा, राइट. सो आई स्टार्टेड रीडिंग न्यू थिंग्स. सो मैंने स्टार्ट ही किया कमोडिटी से. दैट इज़ वन ऑफ द रिस्किएस्ट एसेट्स, राइट, मार्केट्स. सो कमोडिटी से स्टार्ट किया. तो कमोडिटी में मैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनजी जैसे वॉलेटाइल मार्केट्स में मैंने एंटर किया. तो ठीक है, शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉफिट, क्योंकि कमोडिटी में स्मॉल प्रॉफिट्स इजीली बन जाता है आपके, ठीक है. बट अगेन आपके अगर डायरेक्शन सही है तो. बट मैं आई स्टार्टेड रीडिंग. मी व्हाट्स द मेजर मिस्टेक आई डिड, आई यूज टू डू फंडामेंटल रिसर्च इन कमोडिटीज़. मैं मार्केट्स में जो भी रिपोर्ट्स आती थी एंजल वन की, निर्मल बंग, एंड उस टाइम ये रिपोर्ट्स जनरेट करते थे डेली बेसिस पे. तो फंडामेंटल की क्रूड में कितनी सप्लाई हो रही है, कितना आउटपुट आ रहा है, कितना प्रोडक्शन आ रहा है, ओपेक क्या डिस्कशन कर रही है, तो सप्लाई डिमांड क्या है, ये सब मैं पढ़ता था. HDFC बैंक में आफ्टर आवर्स रीड करता था, क्योंकि वो इवनिंग में कमोडिटी मार्केट इवनिंग में एक्चुअली मूवमेंट देता है. तो मैं रीड करता था सब डिटेल में. बट मैं पोजीशंस ट्रेड करता था शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करता था, या फिर स्विंग ट्रेड्स करता था. सो मैच नहीं हो रहा था. सो फंडामेंटली मैं जो कर रहा हूँ उसको उल्टा हो रहा है. जो एक्चुअली होना चाहिए फंडामेंटली, वो टेक्निकली अलग हो रहा है. तो मुझे लॉसेस होने लग गए, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग ह्यूज लॉसेस एट दैट टाइम. उस टाइम लॉसेस हुए मुझे. सो ऑफकोर्स माइंड डाइवर्ट किया. सो दे आर लॉसेस, एंड उस टाइम फंडामेंटल रिसर्च मुझे पता पड़ गया कि ये ट्रेडिंग में काम नहीं करती फंडामेंटल रिसर्च. ठीक है, कभी कभार ठीक है, कभी बिल्कुल ही सही, आज रात को इन्वेंट्री आने वाली है क्रूड की, और वो प्रॉपर फंडामेंटल जैसे एक्सपेक्ट किया वैसे अगर आ गई, तो फिर है ना, ठीक है, वो इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग होगी. अच्छा. बट अदरवाइज मैंने वो गलती की थी आई थिंक, कि जो मेजर मिस्टेक थी, मैं रिसर्च कर रहा था, सब कर रहा था, मैं बिना लॉजिक के काम नहीं कर रहा था, रैंडम काम नहीं कर रहा था, बट फिर भी मुझे लॉसेस हो रहे थे. अच्छा. तो एंड कमोडिटी में बहुत मतलब लॉसेस आपके बहुत एक्सटेंड होते रहते हैं. अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ये सेकंड मेरी गलती, स्टॉप लॉस नहीं लगाता था. तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर आप गए, आपका अकाउंट खाली. सो ये स्टार्टिंग ऐसे हुई थी मेरी. अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो कि थेरोटिकल मटेरियल जो है, अगर वो पढ़ के आप ट्रेड करते हो तो देर आर चांसेस Yes, कि yes. आपका लॉस होगा. देर आर Right. अदर फैक्टर्स दैट विल Of इफेक्ट course, द right. मार्केट. तो आप हमें बता सकते हैं कि व्हाट आर दिस फैक्टर्स, आशीष? सो मेजरली फंडामेंटल यू शुड हैव अ व्यू कि फंडामेंटली क्या है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द प्रोडक्ट, कैसे वो वर्क करता है, डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करता है, क्रिप्टो में भी क्या है फंडामेंटल. बट अल्टीमेटली इफ़ यू आर इन ट्रेडिंग, नॉट इन्वेस्टिंग, इन ट्रेडिंग, यू शुड बी टेक्निकली अवेयर अबाउट द थिंग्स. लाइक टेक्निकली आपको प्राइस एक्शन इज मस्ट. प्राइस एक्शन आपको रीड करना आना चाहिए. आपको ओवरऑल जो ट्रेंड देखना आना चाहिए कि व्हाट इज़ द ट्रेंड गोइंग ऑन, कि तो वो ओवरऑल आपको टेक्निकल फैक्टर्स भी हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में. सो सेकंड टेक्निकल फैक्टर्स हेल्प करते हैं. एंड देन आफ्टर फ्यू ईयर्स लाइक 2-3 years I was making net losses. 2-3 years from starting from 2012 to 14 I think. फिर उसके बाद आई स्टॉप दैट, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे. मतलब लोग रैंडम करते हैं फिर भी प्रॉफिट हो जाते हैं उनको, बट तो अब मुझे रैंडम करना नहीं था. सो आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम 14 to around 17. आई टुक अ ब्रेक, कि मतलब मैं फोकस कर रहा था कि अपने करियर पे, और मतलब लाइक ट्रेडिंग पे टाइम कम कर दिया था बिल्कुल. अच्छा, मतलब या then again I started in 2018, बिकॉज एक बार आप ट्रेडिंग में आ चुके हो तो फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहती है. सो यू कांट बी स्टे अवे फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटीज़, राइट. सो उसमें मैं 18 में वापस एंटर किया. 18 में मैंने अलग गलतियाँ की मतलब आप कोई भी अगर ट्रेडिंग करियर अगर देखा जाए किसी का, अगर वो गलती नहीं कर रहा खुद, अगर वो रियल टाइम में गलती नहीं कर रहा, प्रैक्टिस अगर वो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहा है कि ऐसे करना चाहिए, या फिर डेमो ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो इट वोंट मेक एनी सेंस. तो आपको आपको रियल ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा, कि आपको ट्रेडिंग खुद का पैसा लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको गलतियाँ समझ आएगी, यू विल रियलाइज. तो आफ्टर दैट आई लाइक 18-19 में कुछ ऐसी गलती की थी कि मतलब लाइक पोजीशन साइजिंग मेरी ज़्यादा हो गई थी.
मतलब आई वॉज डूइंग टेक्निकली गुड, टेक्निकली प्रॉफिट्स हो रहे थे, बट पोजीशन साइजिंग रॉन्ग हो रही थी. पोजीशन साइजिंग आई वॉज वेरी लाइक पोजीशन साइजिंग ज़्यादा हो रही थी मेरी, जितनी लिमिट है उससे भी ज़्यादा, लेवरेज ज़्यादा यूज़ कर रहा था. सो उसमें मुझे लॉसेस मिले, तो उसमें गलतियाँ हुई. बट आई विद इन अ ईयर आई रियलाइज़ कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग. अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो फिर आप यू विल नेवर मेक मनी इन लॉन्ग टर्म. सो आफ्टर 2019 onwards it's going good. इट्स गोइंग Yeah. गुड. आई थिंक वो मल्टीपल मिस्टेक्स ही मतलब एक yes, yes. बिग लेसन्स थे Right. आपके लिए, एंड इसीलिए आप अभी प्रॉफिटेबल Right. है. तो आशीष, ये जो आपका ट्रांजिशन है ना इंडियन मार्केट टू क्रिप्टो, ये कैसे हुआ? एंड मतलब जस्ट बिकॉज ये भी यहाँ पे भी ट्रेडिंग होती है, दैट्स व्हाई यू हैव कम हियर, और देयर इज एनी अदर रीजन कि आपने इंडियन Yeah. से So यहाँ पे? it's simple because trader always wants opportunities. So अगर इंडियन मार्केट है इट्स गोइंग गुड, बट अगर क्रिप्टो है सो अगेन क्रिप्टो इज़ लाइक एन एसेट टुडे, तो वो एक अलग ही मार्केट है. सो अगर क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, यू आर फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट, यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग, टेक्निकल्स, एनालिसिस, एवरी मार्केट इज सेम. अगर आप एनालिसिस प्राइस एक्शन कर रहे हैं तो क्रिप्टो में भी सेम है, इंडियन मार्केट में भी सेम है, कमोडिटीज़ में भी सेम है. सो इफ़ यू कैन रीड चार्ट्स, इफ़ यू कैन रीड द डेटा, सो यू कैन रीड द ट्रेंड, सो सब में सेम है. बट क्रिप्टो में वन थिंग इज़ वेरी गुड कि उसमें मार्केट इज़ क्वाइट वॉलेटाइल एंड ट्रेडर्स ऑलवेज लव्स वॉलेटिलिटी. कि ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट निफ्टी में मूवमेंट ही नहीं हो रहा, थोड़ा छोटा छोटा मूवमेंट हो रहा है, सो उसमें आप क्या कैप्चर करोगे, या फिर तो पोजीशन साइजिंग आपको बहुत बढ़ानी पड़ेगी. क्रिप्टो में आप इवन फ्रॉम स्मॉल अमाउंट यू कैन मेक प्रॉफिट्स, एंड उसमें वॉलेटिलिटी है आपको हेल्प करती है इफ़ यू आर इन राइट डायरेक्शन. अगेन इफ़ यू आर फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको प्रॉफिट्स कंपेरेटिवली बेटर, आपको रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड बेटर होगा आपका. अच्छा. सो आशीष, ये जो आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते थे और उसका स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजीज आप क्रिप्टो में यूज़ करते हो कि Yeah, it's something different? broadly same, Broadly. but because I don't use very specific strategies, because कि like crossover हो गया, 5 ने 10 को क्रॉस कर दिया EMA ने, या 50 ने 100 को कर दिया, ऐसी specific strategies मैं यूज़ नहीं करता, because I don't trust, I don't want to you know spend my money on these particular strategies कि है ना ये क्रॉस ओवर हो गया तो मैंने मनी लगा दिया अपना. ऐसा नहीं है. आई लुक ब्रॉडली कि आपने प्रॉपर ट्रेंड क्या है उसका, एंड अगर ट्रेंड इज़ पॉजिटिव, अगर ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो आई यूज़ टू गो विद दैट ट्रेंड. साथ में अगर ब्रॉडरली अगर देखा जाए तो फिर है ना अगर ट्रेंड अगर सही है, अगर पुल बैक लेता है वो वापस अपने लास्ट सपोर्ट पे, तो आई यूज़ टू पिरामिडिंग करता हूँ, एंड उसमें ऐड करता हूँ पोजिशंस. सो इफ़ ट्रेंड इज़ इन राइट डायरेक्शन, so I go with the trend, and in swing and positional trades, and I keep on pyramiding कि add करता है तो positions on, not on higher level, on lower level, on right supports, on right you know pivots you can say. तो उस पे proper trading, it's really smooth and it's really accuracy is quite high in that if you're following the trend. If even it's in downward trend तो आप same कर सकते हैं. योर रेजिस्टेंसेस पे आप ऐड कर सकते हैं पोजीशंस. Got it. सो जस्ट अ प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई इट्स इन माय लाइक एक्सपीरियंस, आई थिंक सो. ओके, तो ज़्यादातर स्ट्रैटेजी में आप प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड एंड a few indicators as well. ओके, व्हाट इंडिकेटर्स? Indicators majorly RSI I use, EMA I use, only 2 EMAs, 20 EMA, 50 EMA and 200 EMA. So ये only these indicators I use. I don't use other indicators at all. Yeah, and volume. ओके, फाइन. सो आशीष, आप कौन से एसेट, मतलब शार्क एक्सचेंज पे कौन से एसेट पे ट्रेड करते हो ज़्यादातर? कौन से कॉइन्स या? So I generally trade in 3 major coins. That is, you can say large cap of market, crypto market, Bitcoin, Ethereum and Solana. So majorly इन 3 पे ही फोकस रहता है मेरा. बट अगर स्मॉल कैप्स अगर देखा जाए, ऑल्ट कॉइन में मैं आई हैव वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी कि उसी को फॉलो करूँगा. अगर वो सेटअप बनेगा देन ओनली आई विल
trade in altcoin. Otherwise, no. No means no in No. altcoin because altcoins are very, very volatile. So I only prefer these three. Can you tell us this setup for altcoin? Yeah, good question. But altcoin में as I said कि strict strategy follow करता हूँ मैं. So strategy की accuracy बहुत अच्छी है, probability is high. Again, it will help viewers as well. But ये है कि altcoin हो या कोई भी market हो, this strategy works. So बट ऑलकॉइन में इसलिए करो कि दे आर मैनी ऑप्शंस इन ऑलकॉइन या बिकॉज तो वो स्ट्रेटजी वो सेटअप आपके पास आने के चांसेस फ्रीक्वेंट है. तो दीज आर नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंट सेटअप बट इन ऑलकॉइंस वी कैन डू दैट. कि आर एस आई बेस्ड स्ट्रेटजी है. इफ आर एस आई इज गोज अबोव 85 then with price action I see the resistance at that time at 85 RSI. I see the resistance. So if there is a resistance and so what I do, I short the overbought levels of crypto, right? तो वो एक strategy है. अगर रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है उसमें फिर आपको एक इंडिकेशन मिलना चाहिए, कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए उसकी नीचे की तरफ, राइट? इफ़ यू आर स्विंग ट्रेडर डेली कैंडल, इफ़ यू आर like a short term trader, hourly candle is fine. So I don't go below 1 hour candle, 1 hour time frame, right? Okay. So this is one strategy. Same we can do with oversold levels, right? If in altcoin especially अगर 20 आपका RSI आता है या उससे नीचे, then only I go on upward direction. मतलब मैं बाय करूँगा. There should be reasonable support level there. एंड उसमें आपने अगेन कैंडल स्टिक आपको देखने पड़ेगा क्लोजिंग. अगर वो रिवर्स हो रहा है एंड बुलिश कैंडल बन रही है देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग. एंड द एक्यूरेसी प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट गुड हियर. Is it? या. एंड सो दिस इज द स्ट्रेटजी एंड यू कैन फाइंड दिस स्ट्रेटजी इन ऑल्ट कॉइन्स वेरी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आप हर मेजर मार्केट में आप हर समय ओवरसोल्ड या ओवरबॉट लेवल पर नहीं देखोगे, right? Correct. We will see above 30 and below 70-80 बीच में ही घूमेगा RSI जनरली. बट अगर आपको ये लेवल मिलता है RSI का एंड यू विद प्राइस एक्शन डोंट गो जस्ट विद RSI, राइट? इट कैन बैकफायर, राइट? सो ये है. सो इन दिस केस यू कैन मेक अ प्रॉफिट्स. ओके, थैंक यू आशीष. आई थिंक जो भी ऑल्ट कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए दे कैन यूज़ दिस स्ट्रैटेजी. सो कमिंग टू लेवरेज आशीष, तो बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत हाई लेवरेज लेते हैं एंड सम ऑफ देम इवन मेक मनी आउट ऑफ इट, लेकिन बहुत सारे लोग लूज़ भी करते हैं, राइट? तो आपके लिए गोल्डन नंबर क्या है कि कितना लेवरेज लेते हो एंड क्या फैक्टर्स लेके आप वो लेवरेज को बढ़ाते हो? सो जनरली आई यूज़ 5x लेवरेज. 5x लेवरेज मैं यूज़ करता हूँ. एंड अगर आपको लेवरेज इंक्रीज़ करना है सो उसमें आपके पास यू शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप, A+ सेटअप यू कैन से. अगर आपको 10x लेवरेज लेना है, आई डोंट यूज़ लेवरेज अबव 10x. 10x तो हाई है, लिमिट है मेरी. इवन दो यू कैन शार्क टैंक्स प्रोवाइड्स वेरी गुड लेवरेज बट फिर भी 10x मेरी लिमिट है. अगर सेटअप A+ रहता है तो अगर सारे फैक्टर्स कॉम्बाइन करके अगर वी कैन सी दैट इट्स अ गुड सेटअप देन आई कैन टेक 10x लेवरेज एज वेल. बट जनरली 5x लेवरेज. Okay. एंड इन वॉलेटाइल मार्केट क्रिप्टो इज वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल एसेट. तो उसमें अगर आप ज़्यादा लेवरेज ले रहे हैं तो आपका लिक्विडेशन बहुत जल्दी होगा. बिकॉज अगर आप 10 टाइम्स ले रहे हैं तो आपका 10% मूव करेगा एंड आपका फंड गया, लिक्विडेट हो गया. 10x लेवरेज ले रहे हैं. अगर आप 20 टाइम्स लेवरेज ले रहे हैं आपका 5% मूव करने पे भी आपका लिक्विडेट हो जाएगा. करेक्ट. सो दिस इज़ वेरी क्रूशियल. क्रूशियल. तो जैसे ट्रेडर आप हो, इट सीम्स लाइक आपके कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है, आप उनको कभी ब्रीच नहीं करते, विच इज़ वेरी गुड. आई थिंक सेफर साइड में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि that's the reason I am profitable. Yeah, right. Otherwise I have made lot of mistakes in my early career. Yeah. Correct.
fine. So Ashish, let's move to brokerage fees, right? तो brokerage fees कम होने से as a active trader आपको कैसे affect करता है ये चीज़? Yeah, very good point. Because Shark Exchange में brokerage is really low and because मैं दूसरे exchange भी use कर रहा हूँ अभी, but Shark Exchange जो लेके आया है brokerage, it's really reasonable. So even you are doing scalping, जो that I don't do actually, scalping मैं नहीं करता, but मैं swing करता हूँ तो मुझे brokerage इतना मैटर नहीं करता जो very frequent traders है, right? But फिर भी brokerage अगर आपके पास वापस refund आ रहा है, what's the good part? देन दिस, राइट? सो मैंने जो भी ट्रेड्स किए हैं, जो भी इफ़ आई एम प्रॉफिटेबल, जो भी ट्रेड्स किए वो पूरा रिफंड आ जाता है वापस इन द सेम मंथ, क्रेडिट हो जाता है वापस. सो दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल एक्सपीरियंस. मतलब कि जो स्पेशली जो ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं उनके ब्रोकरेज में लॉसेज ज़्यादा होने के कारण वन ऑफ द फैक्टर इज़ ब्रोकरेज, कि ब्रोकरेज उनका इतना ऐड हो जाता है कि वो प्रॉफिट में अगर ब्रेक इवन भी होते हैं तो लॉसेज में आ जाते हैं वो. हाँ जी. सो वो बहुत अच्छा. इफ़ यू आर मेकिंग गुड ट्रेड्स, अगर आप प्रॉफिट थोड़ा सा भी प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हैं, इवन 1 रुपी प्रॉफिट आपके वो रिटर्न हो जाएगा ब्रोकरेज. Correct. यू शुड बी प्रॉफिटेबल, Yes. राइट? प्लस इसमें वैसे भी रीजनेबल है ब्रोकरेज शार्क एक्सचेंज में. Yeah. आई एम यूजिंग अदर एक्सचेंजेस, उनकी ब्रोकरेज काफ़ी हाई है. शार्क एक्सचेंज से इवन यू कैन से 2 times 3 times ब्रोकरेज है. शार्क एक्सचेंज बना ही था इसीलिए कि एक्टिव ट्रेडर्स को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं. इसीलिए हमारा मार्केटिंग कैंपेन जो होता है, जैसे 30 days चैलेंज की बात कर रहे हो आप, राइट. तो उसमें भी हम ऐसे ही कि हमें रिवॉर्ड देना है फॉर Yeah. स्टेइंग कंसिस्टेंट, फॉर फॉलोइंग सर्टन डिसिप्लिन. सो Right. दिस इज आवर वे ऑफ. इवन यू मोटिवेट ट्रेडर्स Yes. जो प्रॉफिटेबल होते हैं, उनका ब्रोकरेज तो क्रेडिट होता ही है, वो उनको दिखता है उनके प्लेटफॉर्म पे, बट साथ में उनको सर्टिफिकेट भी आता है, करेक्ट. तो उनको मोटिवेशन फील होता है, एटलीस्ट मोटिवेटेड फील होता है कि आई एम डूइंग गुड. मतलब आप कर कब सकता से ट्रेड कर रहे हो शार्क एक्सचेंज पे? शार्क एक्सचेंज पे इट्स जस्ट 2 months. इट्स 2 months एंड आई थिंक यू वर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल फॉर अ मंथ. Yes, yes, एंड yes. अभी तक सेकंड मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है Yeah. आपका, करेक्ट? Yeah. Nice. Okay, fine. So, can we move to the last phase, rapid fire phase? Sure. Okay, so let's start the rapid fire phase. Okay, low leverage versus high leverage. Low leverage. Okay, short bias versus long bias. In current moment, short. Scalping versus intraday. No. None. Nothing. Okay, quick exit versus trailing profits. Trailing profits, for sure. Okay, strict stop loss versus flexible stops. It depends actually. Sometimes it's strict stop loss. and Okay. Sometimes flexible as well. Yeah, because it depends on the market. All it changes, is very dynamic. So sometimes we have to change stop loss as well. Got it. Accuracy versus frequency. Accuracy, for sure. Accuracy. Okay. Trend follow versus reversal trade. Trend follow, but reversal also I prefer, because I like value buying. I like value investing. So trading में भी मैं वैल्यू ढूंढता हूँ कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिवर्सल अपॉर्चुनिटी दिखती है, सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट्स. Nice. Capital protection versus aggressive growth. If it's really aggressive growth, then I'll prefer aggressive growth. Otherwise, capital protection. All right. But capital protection is the Safest. primary mantra. Okay, Yeah. got it. Few high quality trade versus many small trades. As I said, I do swing and positional. I prefer high quality trades Okay. only. And consistency versus big wins. Consistency. All right, that's it. ये था हमारा rapid fire round. Thank you so much Ashish for coming and sharing such a useful journey. बहुत सारे लोगों को इंस्पायर होते होंगे Thank कि you too, yeah. फुल टाइम जॉब के साथ भी ट्रेडिंग किया जा सकता है, एंड विद सच फोकस, such principle oriented. Yeah. है ना? Then That- only you can do with full time job. All right. Would you like to give some suggestion to our viewers as a trader जो trade करना चाहते हैं अभी? So majorly, I just want to say, trading is one of the toughest business or job, you can say, in any industry.
सो ट्रेडिंग में ये है कि अगर आपने यू कैन से राकेश झुंझुनवाला इटसेल्फ सेड कि ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट वे टू अर्न easy money, you can say, and is the easiest way to lose your money, hard earned money. So Rakesh Jhunjhunwala himself said, you know. So trading में अगर आपको आना है, so सबसे पहले तो आप you start earning points. आप पॉइंट्स पे फोकस करें, आप प्रॉफिट्स पे बिल्कुल फोकस मत करिए. इवन यू आर एक्सपीरियंस, डोंट फोकस ऑन प्रॉफिट्स अपना पाएंगे, राइट, बट यू फोकस ऑन मेजरली पॉइंट्स, कैप्चरिंग पॉइंट्स. अगर आपको पॉइंट्स कमाना आ गया, मतलब यू आर डूइंग गुड एनालिसिस, तो आप पॉइंट्स कमा रहे हो, तो आप कभी भी पोजीशन साइजिंग बढ़ा के आप प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, राइट. तो प्रॉफिट्स आपको अपॉर्चुनिटी दे ही देगी प्रॉफिट्स कमाने के लिए, बट यू कैन अचीव गुड प्रॉफिट्स इन एनी अपॉर्चुनिटीज़. बट अगर आपको पॉइंट्स कमाना ही नहीं आया, आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो आपको ये नहीं पता, देन यू वोंट डू You won't. एनीथिंग. बट मोर देन एनालिसिस पार्ट, risk management is the key, right? So just be like a Rahul Dravid. I always inspire Rahul Dravid because he always don't lose your wickets. आपका कैपिटल मत खो. अगर आपका कैपिटल खो दिया आपने, तो आप वापस एंटर ही नहीं कर पाओगे. इट्स बेटर टू जस्ट प्ले क्वालिटी शॉट, राइट. सो डोंट ठीक है, आप वेस्ट कर रहे हो, दिन वेस्ट हो रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. हैव पेशेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस पर आप शॉट आराम से लगा सकते हैं, स्मूथली, बिल्कुल. सो डोंट लूज़ योर विकेट. आपका रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एक बार मनी लूज़ कर दिया तो आप एंटर ही नहीं कर पाएंगे, राइट. सो दिस इज़ द थिंग दैट प्रॉफिट्स तो हमेशा कभी बन जाएंगे. स्टिक टू प्रोसेस, एनालिसिस पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, पोजिशन साइजिंग शुड बी राइट इन राइट वे, एंड यू विल मेक प्रॉफिट्स फॉर श्योर. सो दिस इज़ द थिंग दैट स्टिक टू प्रोसेस, नॉट प्रॉफिट्स तो आपको सोचना ही नहीं है. जो ग्रीड, फियर, ये सब क्योंकि ग्रीड लेके आते हैं हम जनरली, राइट. तो अब अगर आप दूसरा बिजनेस करते भी है, राइट, तो आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपको प्रॉफिट फिक्स नहीं होता पहले से कि हमें इतना ही कमाना है. 100 रुपये प्रोडक्ट है, हमें 20 रुपीज़ ही कमाना है. आप अनलिमिटेड तो नहीं बोलते, अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाना है, 100 रुपये प्रोडक्ट है, मैं 1000 में सेल करूँगा, ऐसा तो नहीं सोचते ना. वाई इन ट्रेडिंग यू शुड बी इन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, राइट. सो आप ग्रीड कभी मत कीजिए. अब ठीक है, आप प्रॉफिट बुक मत कीजिए, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए. प्रॉफिट अपना बढ़ता रहेगा. जब अपना आपका अगर मार्केट ने दिया तो प्रॉफिट बहुत भी हो सकता है, बट यू शुड बी हैविंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, नो ग्रीड. और फोमो जो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमेशा ट्रेड लेने से ही पहले लगता है कि हम ये प्रॉफिट खो देंगे. अरे प्रॉफिट आया ही नहीं अभी तक, कैसे खो देंगे. तो आप फोर्सिबली ट्रेड लेते हैं, राइट. तो वो मत देखिए, प्रॉफिट को सोचना ही नहीं है. थिंक अबाउट लॉसेज. द डे यू थिंक अबाउट लॉसेज, यू विल बी प्रॉफिटेबल फॉर श्योर. तो आप लॉस लिमिट करेंगे, आपका प्रॉफिट्स अपने आप आएगा. दैट्स इट. Very beautifully put. Thank Thanks. you, Ashish. Thank you for coming. And thank you for viewing the podcast. Stay tuned for more such interesting trader stories.